Very good morning, dear student. Today is a science class and today we will discuss a remaining portion from chapter 8. Chapter 8, Plants, Form and Function. In previous class, we have discussed about different types of plants according to their size, like herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. And we have discussed about stem. Today we will discuss leaf. Page number 80. The leaf is lateral, generally flattened structure borne on the stem. We know that the leaves also appear on shoot system. The leaves appear on stem. It develops at the node and bear a bud in its axil. The axillary bud later develop into branch. First it develop at the node. जो stem होता है उस पर एक नोड्स होते हैं, तो नोड से डेवलप होंगे एज अ बर्ड, और ये बर्ड्स पूरी किस में चेंज हो जाएगी, किस में ग्रो करेगी, बाद में लेटर इट ग्रो इनटू ब्रांच, और जो लीव्स होगी वो किस पे अपेयर होगी, ब्रांच पे. A typical leaves consist of 3 main parts. Now we will discuss the different parts of a leaf. The typical leaf consists of 3 main parts. Now we will discuss the different parts of a leaves. We can see there are different parts in the leaves. In leaves, this part is called petiole. जो ये पिटियोल होता है वो लीव्स को क्या करता है, स्टेम से, जो पिटियोल के थ्रू ये स्टेम से या ब्रांच से लगी हुई होती है लीव्स, जो इसका ये नीचे वाला इसका लीफ बेस होता है, और ये पिटियोल पार्ट है इसका फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, और ये होता है पूरा उसका क्या, लैमिना या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं इसको. जो ग्रीन पार्ट है वो क्या होगा, लैमिना. एंड दिस इज द मार्जिन. द कॉर्नर ऑफ द लीव्स इज नॉन एज मार्जिन. एंड दिस लीफ टिप, जो लीफ का सबसे ऊपर वाला टॉप पॉइंट है, इज अ लीफ टिप. एंड दिस इज द मीड रिप्स. मीड वेंस बोलते हैं. वेंस क्या करते हैं, देखो इसमें आपको बहुत सारा पूरा नेटवर्क दिखेगा वेंस का. दिस इज इन मिडल, दिस इज कॉल्ड अ prominent veins or midribs, and there are different arrangement of different types of leaves, so different types of veins in parallel manner, or you can see this is petiole, lamina, margin of leaves, leaf tip, and this is midrib. The leaf consists of 3 main parts: leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by the petiole. Petiole help to leaves attached by the stem. जो petiole होता है उसके थ्रू जो leaves होती है वो पूरे stem से अटैच हुई होती हैं. And this long flexible petiole allow the leaf blade to the flutter in the wind. And because of this flexible petiole, the wind can move in easily in air. Easily, how can leaves flutter in wind? Because of presence of this petiole. Petiole होता है वो flexible होता है, तो easily उनको move करने में, air में move करने में leaves को क्या करता है, help करता है. Thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins. We have just discussed the green part, and the flattened part of leaves is known as leaf lamina or leaf blade. And in leaf blade there are many veins present, and the middle and the main, there is usually a middle prominent veins which is known as midrib. और जो leaves होती हैं उसके लैमिना में एक main veins present होती हैं, उसको अपन बोलते हैं midrib. Veins provide rigidity to the leaves blade and act as channel of transport for water, minerals and food material. And जो ये veins होती हैं, these veins provide particular shape to the leaves and provide rigidity. यानी जो उसका proper shape होता है वो rigid होती है. वो किसकी वजह से होती है, जो ये पूरा veins का channel present होता है लैमिना में, उसकी वजह से उसका एक proper shape होता है, वो उसको rigidity provide करते, थोड़ी hardness बनाती हैं. Because of presence of these weeds, lamina have a proper shape, and this also act as a transport channel. Means we all know that the leaves prepare food for whole plant by photosynthesis process. So leaves also known as food factory for whole plant.
and by these veins the leaves can transport different types of materials like food, water, minerals. According to shape, size, margin, and according to apex, the differed leaves can be vary in size. They can be different in their size, their margin. The arrangement of veins in the lamina of a leaf is known as वेनिशन. देखो वेनिशन क्या होता है, जो लीफ लैमिना होता है उसमें जो पूरा वेन्स का अरेंजमेंट होता है, जो मिड रिब्स के बाद में डिफरेंट टाइप्स की प्रोमिनेंट वेन्स के बाद में जो अलग अलग तरह का पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरा अरेंजमेंट होता है, दिस इज नॉन एज वेनिशन. एंड अकॉर्डिंग टू वेनिशन वी कैन क्लासिफाई लीव्स इनटू टू. फर्स्ट पैरेलल वेनिशन, सेकेंड रेटिकुलेट वेनिशन. In parallel venation you can see in given picture page number 81. First parallel venation seen in maize leaf, and the parallel venation mostly found in grass or bamboo plants. In what is the parallel venation? When the veins run parallel to each other with the lamina. तो उसमें जो उसका अरेंजमेंट होता है पूरा वेन्स का, वो कैसे होता है, इस लीव्स इसके अकॉर्डिंग जाता है. उसकी जो वीन्स होते हैं वो पैरेलल शेप में पूरी फैली हुई होती हैं. तो वो कौन सा वेनिशन होता है, पैरेलल वेनिशन. और ये मोस्टली किस में होता है, जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस में होता है, मेज प्लांट्स में इस तरह का होता है. और सेकेंड टाइप्स का है रेटिकुलेट वेनिशन. रेटिकुलेट वेनिशन का देखो, दिस इज द टाइप्स ऑफ रेटिकुलेट वेनिशन. First midrib present in the middle, and after the different types of veins, small veins coming out from this middle ribs. This is known as reticulate venation, and this mostly in mango, in banyan trees, and many trees have reticulate venation. The plants having leaves the parallel venation have fibrous roots. And while the plants have reticulate venation have a taproot. This fibrous root and taproot we will discuss in our next section in this chapter when we will study about root. Leaf. Leaf can be two types, simple leaf and compound leaf. This is simple leaf. What is a simple leaf? A leaf is said to be simple when its lamina not broken up to the middle ribs. देखो जो इसका पूरा लैमाइना है वो एक पूरा अटैच है, पूरा एक कहीं पे भी कटा फटा नहीं है. तो ये लीव्स होगी सिंपल लीव्स. सिंपल लीव्स में क्या होता है, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट लैमाइना नॉट ब्रोकन अप टू द मिड रिब. दिस इज नॉट ए सिंपल रिब. जो इसका पूरा लैमाइना है वो कहीं पे कटा फटा नहीं है, एक सिंगल लीव है, ये सिंपल लीव होगी. एंड सेकेंड टाइप ऑफ लीफ कंपाउंड लीफ. When the cut in the lamina reach up to the mid rib, breaking it into a number of leaflet. जब क्या होता है, इसका जो ये सिंपल लीफ में पूरा लैमाइना कहीं कटा फटा नहीं होता है. बट इन कंपाउंड लीफ when cut reach this middle leaf, दिस डिवाइड इंटू नंबर ऑफ लीफलेट. यहाँ पे बहुत सारे, एक इसका जो मिड रिप होगी वो तो कॉमन होगी कंपाउंड लीव्स में, बट इसके जो लीफलेट्स होंगे वो सब डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि इसके बीच में कट लगने से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लीफलेट्स बन जाएंगे. तो वो अपन को वहाँ पे बहुत सारी लीव्स सिम्स होगी, तो वो होती है कंपाउंड लीव्स. A bud is present in the axil of the petiole in both simple and compound leaves. जो सिंपल और कंपाउंड लीव्स होती है उन दोनों के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट होती हैं, जो किसमें, जिससे न्यू लीव्स निकलती हैं, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ. बट जो कंपाउंड लीव्स होती हैं उसकी लीफलेट्स में एक्सिल प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि वो पूरी एक लीव्स होती है. पर वो कंपाउंड क्यों होती है, क्योंकि उसकी मिड रिप तो सिंगल होती है पर उस मिड रिप तक पूरा कट लग जाने से वो अलग अलग अपन को सिम्स होती हैं. यू कैन सी इन गिवन पिक्चर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. व्हेन इट इज वेरी हॉट वी स्वेट. बहुत गर्मी होने से क्या होता है, ऑटोमेटिक we do excretion, and in excretion or sweat coming out from our body, same process also found in the plant also. They are also sweating. How? Now we will discuss the sweating process in plant. But there are different one thing in plant. This process known as transpiration. Transpiration का meaning क्या होगा, plant take out water as a water form by the plant.
by the green parts of a plant, this known as transpiration. देखो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, तो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट्स कौन सा हुआ? लीव्स. तो लीव्स क्या करती है? लीव्स टेक आउट वाटर फ्रॉम देयर बॉडी एज ए फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो वाटर वेपर के वाटर को किस में कन्वर्ट करके, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से जो बाहर निकालती है, वो प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन. In the same way, plants sweat too. Water comes out of the leaves in the form of water by the process called transpiration process. Plant release lots of water into the air through this process. You can see in given activity, page number 82. Here one activity is given. Through this activity, you can see the sweating or transpiration process in the leaves. When we will take some leaves and tie with polythene. After some times, when we take out this polythene, we will see the water vapor present in this polythene or water vapor present in the leaves. This process known as transpiration. एयर में सनलाइट के प्रेजेंट में जो वाटर होते हैं, वो भी अपनी बॉडी से वाटर को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं एज इन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. And we already know that leaves also prepare food for whole plant by photosynthesis process in the presence of sunlight and with the help of water and carbon dioxide. And in this photosynthesis process, they produce starch as a food for whole plant and oxygen. And this oxygen used by all living things in respiration process. Oxygen is given out in this process. In photosynthesis process, oxygen is given out, and this oxygen used by all living organisms in their breathing system. Ultimately, food get stored in different parts of plant as starch. देखो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें रिएक्शन होती है CO2 वाटर और सनलाइट के प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल प्रॉपर होना चाहिए. ग्रीन प्लांट्स ही ये प्रोसेस कर सकती है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स वन टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है, एंड दिस ग्रीन पिगमेंट हेल्प द प्लांट इन प्रिपेयर देयर फूड. स्टार्च इज अ फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स. देखो ऑक्सीजन, इसका जो रिजल्ट, पूरी रिएक्शन का रिजल्ट होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, CO2 वाटर एंड सनलाइट, वो क्या करेंगे? CO2 वाटर एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे. तो एक तो स्टार्च बनेगा, ये स्टार्च एज ए फूड प्लांट्स यूज कर लेगा और ऑक्सीजन गिव आउट कर लेगा. और उस ऑक्सीजन को कौन यूज करेगा? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे. नाउ वी विल सी डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट मॉडिफिकेशन लीव्स इन अ प्लांट. देखो वो लीव्स किस में मॉडिफाई होती हैं एक अलग अलग फंक्शन को करने के लिए. लीव्स का मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना, ट्रांसपीरेशन, ये दो प्रोसेस तो उसके है ही. उसके अलावा वो क्या क्या प्रोसेस करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, तो वो अपने आप कुछ चेंजेस कर लेती है, अपने आप में मॉडिफाई हो जाती हैं इन डिफरेंट फंक्शन, वेरियस फंक्शन को करने के लिए. फर्स्ट, लीव्स आर ऑफ्टन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस. दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीस. जो मटर का प्लांट्स होता है, उसकी लीव्स होती हैं, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, क्योंकि उसका टेंड्रिल्स की हेल्प से वो क्या करती हैं? क्लाइंबिंग, और उस टेंड्रिल की हेल्प से वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करने में, प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करवाती है. तो देखो यहाँ पे वो कैसे एज ए स्टेम वर्क कर रही है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होकर उस पूरे प्लांट्स को किस तरफ ग्रो करवा रही है? अपवर्ड ग्रो करवा रही है. नेक्स्ट, इन जीरोफिटिक प्लांट्स. देखो जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनको जीरोफिटिक प्लांट्स बोला जाता है. लाइक अ कैक्टस. इन कैक्टस द लीव्स कन्वर्ट इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर. कांटों में चेंज हो जाती है, वो स्पाइन्स में चेंज हो जाती है. इसका रीजन क्या है? व्हाई दे आर मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू स्पाइन्स? बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट होल प्लांट्स बाय वाइल्ड एनिमल. And one more thing, they are modified into spikes because the check loss of water from the transpiration process. जो देखो वो क्या होती है? जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं. इसका रीजन क्या है? वो क्यों उसमें चेंज हो रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कौन करता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस डन बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट का जो ग्रीन पार्ट यानी कि लीव्स. तो लीव्स के थ्रू क्या हो जाता है? जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वो डेजर्ट में होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर दे चेंज इन स्पाइक्स. तो स्पाइक्स में
चेंज होने से क्या हो जाएगा, जो उसका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाएगा, उससे जो वाटर लॉस नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम हो जाएगा। इसलिए वो कैक्टस प्लांट्स की जो लीव्स है वो किस में चेंज हो जाती है, स्पाइक्स में। टू अवॉइड दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस दे चेंज इनटू स्पाइक्स। The fleshy leaves of onion and garlic store food. The garlic and the onion, in them the leaves act as a food storage. जो उनमें होते हैं वो एज ए फूड स्टोरेज वर्क करती हैं, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पूरे प्लांट में फ्लेसी पार्ट में कन्वर्ट हो गई है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस plants such as picture plant, Venus flytrap etc. also modified। देखो जो कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का क्या मीनिंग होता है, वो किसको, इंसेक्ट्स को खाते हैं। प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट, देयर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लीव्स ट्रैप इंसेक्ट इन देम, सो दे मॉडिफाई इन डिफरेंट शेप। और यू कैन सी इन Venus flytrap इन सेकेंड पिक्चर। देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हेन एनी इंसेक्ट्स कम इन दिस बिटवीन दिस देन दे विल क्लोज देमसेल्फ एंड सो दे आर नॉन इज इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मीनिंग कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, वो कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस। और इसमें जो लीव्स होती है वो स्पेशल स्ट्रक्चर में उन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए वो किसमें अलग अलग शेप और अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट्स होता है, उस पिक्चर प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो एज ए पिक्चर फॉर्म, पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज हो जाती है। जैसे कोई इंसेक्ट उस पिक्चर में जाएगा, उसके जो ऊपर वाला लीड होगा वो बंद हो जाएगा और वो इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा, उसके अंदर टैप हो जाएगा। तो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Next part we will do in our next class. What's the time for Lido?